Welcome back, and dear children, to Simplified Maths. We are today starting in this particular lecture. We are going to continue with the exercise 11.1. Okay, chapter 11 is going on conics part 3. Chapter exercise 11.1. I think we have completed up to sum number 9. The discussion was done. Now, all of you will just see in the textbook page number 241. Today we are going to discuss from sum number 10 to up to 15. Not all, but we will just take a few sums of it. Now the 10th sum, all of you read the question, okay. Find the equation of circle passing through the point 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. Okay, if you have a textbook, then only you will understand what am I speaking right now. Okay, so find the equation of circle passing through the 2 points 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16. So center we can always take as HK. Okay, so let us say let center of the circle बराबर is HK, right, and which lies on the line, वो आपको दिया हुआ है which lies on the line, okay, which line given is 4x plus y is equal to 16, right. So when any point, not only center, when any point lies on the circle, that means this point will satisfy this equation. Okay, satisfy this equation means what, dosto? H you can put in place of x, k you can put in place of y. That is called the satisfaction. Okay, so therefore you have 4h plus k is equal to 4h plus k is equal to 16. Okay, so you got one equation in terms of h and k. Now just say this is an equation number 1. Okay, now what more data is given? You have to find the equation of circle first of all. Now let us assume let the required circle is, so always what you will assume, that Cartesian form. What is that Cartesian form? X minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. This is a Cartesian form, okay, means the equation of a circle. Now this is the required circle which passes through which point? Given 4, 1 and 6, 5, okay, which passes through, okay, the points, passes through the point, 4 points actually. What are the points? 4, 1 and 6, 5. ठीक है, सो फिर से वही बात आ गई, passes through मतलब क्या, ये 4, 1 and 6, 5 both will again satisfy the equation of a circle. इसको satisfy करेंगे, isn't it? Okay, therefore क्या होगा, यहाँ पर पहले 4, 1 पॉइंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, you will have so x is 4, so it will be 4 minus h whole square plus y is 1, so 1 minus k whole square is equal to r square, and second point is 6, 5. So 6, 5 यहाँ पे रखेंगे, then you will have 6 minus h the whole square plus 5 minus k the whole square is equal to r square. ठीक है, now you can call this equation as equation number 2. This equation is number 3. Okay, अब क्या करेंगे,
if you observe properly, both were having RHS is r square. So if I subtract both of this equation minus minus minus, ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्ट्रैक्शन. तो अगर हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे देन व्हाट यू विल गेट, सब्ट्रैक्शन से क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ से आर स्क्वायर कट हो गया, सो ये तो ज़ीरो हो गया. अब लेफ्ट हैंड साइड में सी 4 माइनस एच होल स्क्वायर, 4 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस एच होल स्क्वायर, देन प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस के होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ज़ीरो. आर स्क्वायर काट हो गया ना, सो इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया. क्लियर? ओके. नाउ व्हाट, सिंपली एक्सपांशन ऑफ दिस थिंग, and after expanding, if you see observe properly, you will get one more equation in terms of h and k. ठीक है, देखो कैसे होता है, इसको एक्सपांड कर देते हैं. देर आर टू वेज ऑफ एक्सपांडिंग दिस. वन वे से यू कैन टेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट लेकिन फिर से वो आगे तो सिंप्लीफाई फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा. सो बेटर आई जस्ट what I do is expansion. So it will be 16 minus middle term will be 8h, ठीक है, प्लस h स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म एक्सपांसन हो गया, माइनस 6 माइनस h द होल स्क्वायर, सो 36, मिडल टर्म विल बी माइनस 12h, बट आगे माइनस है तो प्लस 12h, लास्ट टर्म एच स्क्वायर बट माइनस, हो माइनस एच स्क्वायर, राइट. सो इसका भी हो गया. नाउ द थर्ड वन, दैट इज 1 स्क्वायर 1, मिडल टर्म माइनस 2k प्लस k स्क्वायर, ये इसका हो गया अभी ये लास्ट वाली. सो माइनस 25, 5 स्क्वायर विल बी 25, मिडल टर्म विल बी माइनस 10k, बट आगे माइनस है तो प्लस 10k हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10k, एंड लास्ट टर्म विल बी k स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. सो नाउ सी व्हाट इज एनीथिंग इज गेटिंग कैंसल्ड आउट. ये देखो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कट, इतना कट होने के बाद अब जो भी बचा लेट अस राइट इट डाउन. तो अब देखो ये है 12h माइनस 8h, तो कितना हो गया, 4h हो गया प्लस 4h. फिर k वाली टर्म देखते हैं, तो k वाली क्या है, 10k माइनस 2k, तो 8k हो गया प्लस 8k. ठीक है. नाउ ऑल कॉन्स्टेंट्स. अब कॉन्स्टेंट्स में देखो ध्यान से, तो सी यहाँ पर एक्चुअल में यू कर लेंगे, 16 है माइनस 36, तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा माइनस 20, माइनस 20 हो गया. ठीक है. माइनस 20 के साथ माइनस ये ले लो 25, तो माइनस 45 हो गया, प्लस 1 कर दो तो माइनस 44 हो गया. माइनस 44 इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. जस्ट चेक वन मोर टाइम वेदर इट इज़ ओके और नॉट. 16 माइनस 36, सो माइनस 20, माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45 प्लस 1, सो माइनस 44. ठीक है. अब यहाँ से थ्रू आउट 4 कॉमन निकाल दो. सो 4 कॉमन निकाल दे तो इट विल बी व्हाट, h प्लस 2k, राइट. और माइनस 44 को उस तरफ ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 11. 11 4 ज़ा 44, नो. ओके. सो नाउ आई कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये हमारा इक्वेशन 4 आ गया. तो अब देखो आपके पास 4 इक्वेशन बने, 1 2 3 4. ये इक्वेशन 1 है, 4h प्लस k इक्वल टू 16, एंड लुक एट द इक्वेशन 4, h प्लस 2k इक्वल्स टू 11. कैन आई सॉल्व दिस टू इक्वेशन? यस. अभी 2 और 3 को छोड़ो, 1 और 4 को तो सॉल्व कर सकते हो ना. ओके. सो क्या करेंगे हम, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4. ठीक है. 1 और 4 को मैं साथ में लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे. 4h प्लस k इज इक्वल टू 16,
इट विल बी 4h प्लस k इज इक्वल टू 16 और दूसरा इक्वेशन जो बना था वो था h प्लस 2k इज इक्वल टू 11, h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए यू नो क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ बिकॉज तो सो दैट यू गेट 2k ओवर हियर, है ना। तो यहाँ पे 2k आ जाएगा एंड सो यू हैव 4 2 ज़ा 8h प्लस 2k is equal to 32 and now this is h plus 2k is equal to 11, right? अब क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, राइट, सब्ट्रैक्शन, गॉट इट। सो वंस यू टेक अ सब्ट्रैक्शन, सो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होने वाला है, ये 2k माइनस 2k गॉट कैंसल आउट, 8h माइनस h विल बी 7h, ठीक है, एंड 32 माइनस 11 कर देंगे तो आई थिंक इट विल बी 21, है ना, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 तो 21, ओके। तो 7h इक्वल्स टू 21 मिला दोस्तों। इसका मतलब कि h इज इक्वल टू 7 3 ज़ा, सो 3 h मिल गया हमको। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ h, हाउ टू गेट k, यूज एनी वन ऑफ दिस टू इक्वेशन, 1 और 4 जो भी यूज़ करना है। सो इम्प्लाइज यू कैन नाउ यूज इक्वेशन नंबर 4 या 1 कोई भी ले लो, बाई 4, 4 मतलब ये वाला 4 है, मैं ये इसलिए ले रहा हूँ कि उसमें डायरेक्ट h मिलेगा इसलिए, अदरवाइज ये भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो बाई 4 यू विल हैव h, सॉरी 2k फाइंड करना है ना, तो 1 ले लेते हैं, सॉरी पार्डन, 1 से क्या है कि k फाइंड करना है ना, तो k वाला ले लेते हैं। सो इट मीन्स 4h, सो बाई 1 4h, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस k इज इक्वल टू 16, बराबर, h इक्वल टू 3 मैंने रख दिया। तो k इक्वल्स टू कितना मिल गया हमको, 4, 16 माइनस 12, h और k मिल गया। नाउ द पुट दिस वैल्यू ऑफ h एंड k इन आइदर इक्वेशन नंबर दिस वन, 2 और 3 किसी एक में रख दो, किसी भी एक में रख दो, ठीक है, बिकॉज दैट इक्वेशन जो है ना उसमें h, k और r तीनों हैं, तो उसमें h और k यू ऑलरेडी गॉट, you can use it, so you will get the value of r, because we want to find the circle equation. So hk we got, that means we got the circle, but sorry center, and still we want one thing, that is radius, okay, अभी radius बाकी है। तो putting the value of, okay, putting values of h and k, ठीक है, values of h and k इन 2 और 3 एनी दिविल, तो मैं 2 में रखता हूँ सपोज, ओके। तो देखो h की जगह पे 3 और k के बदले 4 रख दूंगा मैं, 2 इक्वेशन जो है, सो इट विल बी 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 1 माइनस k, सो इट विल बी 1 माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। h k I have replaced by 3 and 4, that's all. So that 4 minus 3 is 1, 1 square will be 1 only, this is minus 3 square will be 9 only, so r square हो गया 10, r square is equal to 10। अभी एक्चुअली रेडियस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिकॉज वी वॉन्ट r square, we don't want r actually. So what is the equation of required circle? Finally, how will you write? Thus, you can say that the required equation of a circle is, तो अभी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसमें h, k और r तीनों रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल। सो x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज 10, हो गया आंसर। अब खाली क्या करना होगा आपको, एक्सपांसन, व्हाट यू हैव टू डू इज एक्सपांसन एंड देन दैट विल बी द फाइनल आंसर, ओके।
सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका? आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका मिडल टर्म -6x, इसका मिडल टर्म -8y, ठीक है, प्लस 9 प्लस 16 25 -10, सो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। गॉट दिस दोस्तों? ठीक है ना? सो दिस टाइप ऑफ सम कैन बी आस्क्ड इन हाउ मेनी मार्क्स डियर चिल्ड्रन? आई डोंट थिंक इट विल बी आस्क्ड इन लेस देन 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इसलिए, बट नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है। बट ये तो 11 स्कूल की एग्ज़ाम है तो चिंता नहीं है। बोर्ड में ऐसा होता है, कभी कभी छोटा सम्स होता है ना, वो ज़्यादा मार्क्स में पूछ लेते हैं, और बड़ा सम्स होता है वो 2 मार्क्स में आ जाता है। ऐसी सब गड़बड़ होती है। सो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट, राइट? नाउ सम नंबर 11 वी आर नॉट डूइंग दोस्तों, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक सम नंबर 10 ओनली। ओके, राइट? 12 सम को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। आप थोड़ा रीड करो क्वेश्चन को तो समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस इक्वल्स टू 5। सो रेडियस गिवन, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर, हम उसको आर नोटेशन दे देंगे, ठीक है। आर इज इक्वल टू 5 गिवन, ये एक डेटा हमको दिया हुआ है। whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3, ऐसे दिया हुआ है। whose center lies on the x-axis, okay, center of the required circle, center lies on the x-axis, ऐसे this is given to us, x-axis, ओके, ये हमको दिया हुआ है। सो यू नो व्हाट इज द सेंटर नोटेशन? एच के। एच के इज ऑलवेज अ सेंटर, बट इफ इट इज ऑन द एक्स एक्सिस दोस्तों, देन यू नो ग्राफिकली ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। तो मैं एच के सपोज नहीं करूंगा, मैं क्या सपोज करूंगा? H0। ओके, देयरफॉर लेट, ओके, H0 इज अ सेंटर, ओके, लेट अस से इट इज अ सेंटर ऑफ अ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है दोस्तों, राइट? तो H0 सपोज कर लिया, रेडियस 5 दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल? अब इक्वेशन लिख देंगे हम, ओके। दस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, तो क्या होगा? x माइनस एच द होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। व्हाट आई एम यूजिंग? h, k एंड r, ठीक है ना? मतलब हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया x माइनस एच द होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? खाली h इज अननोन क्वांटिटी फॉर अस दोस्तों, तो खाली हमको h ही फाइंड करना है, बराबर कि नहीं? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सब में क्या दिया हुआ है? दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। नाउ दिस इक्वेशन, ओके, ये जो इक्वेशन 1 है, सर्कल 1 ये वाला, पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो भी दिया हुआ है। पॉइंट इज गिवन 2, 3, क्या दिया हुआ है? 2, 3, ठीक है। तो 2, 3 मतलब x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3 आपको यहाँ पे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। एंड सो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सो 2 माइनस एच द होल स्क्वेयर
plus y square means 3 square, that is 9, is equal to 25. Now what is the easiest way to solve this? 9 को उस तरफ ले जाओ तो 16 हो जाएगा. So 2 minus h the whole square is equal to 16. Okay, and so you can, instead of 2 minus h, you can take h minus 2, थोड़ा easy पड़ेगा, is equal to 16. स्क्वायर है ना, चलता है, राइट. सो व्हाट विल बी h minus 2? स्क्वायर रूट बोथ द साइड, प्लस और माइनस 4. ठीक है, प्लस और माइनस 4. तो हमको h की दो वैल्यू मिलेगी. दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 4. माइनस 2 विल गो ऑन दैट साइड, विल बिकम प्लस 2. ठीक है, मतलब कि h इज इक्वल टू 2 प्लस 4, दैट इज 6, और h इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट इज माइनस 2. ठीक है, तो ये हमारा h मिल गया. अब ये h की वैल्यू जो है दोस्तों, वो आप कहाँ पे रखोगे, सो दैट यू गेट द इक्वेशन ऑफ सॉरी k. ये मेरा क्वेश्चन आया, लेकिन आपको तुरंत समझ में आना चाहिए सर ये तो आप गलत बोल रहे हो, बिकॉज यहाँ पर k ऑब्टेन करने का है नहीं. वाई? बिकॉज सेंटर इज h0, है ना. देयरफॉर यू हैव सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो दो आंसर मिलेंगे हमको, आइदर 6 0 और माइनस 2 0. गॉट इट? 6 0 और माइनस 2 0. ठीक है, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड, ये आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. के ढूंढना नहीं है, खाली एच मिल गया, हो गया काम. रेडियस तो 5 दिया हुआ है. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, तो पहले हम 6 0 रखेंगे. तो यहाँ पे इक्वेशन है, उसमें x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. और दूसरा इक्वेशन ये माइनस 2 वाला, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ठीक है, राइट. और अब आगे क्या करोगे वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, यू जस्ट फिनिश इट इन द सिंप्लीफाई करके, बस और कुछ है नहीं, 2 स्टेप का है. आगे राइट द आंसर इन द होमवर्क. ठीक है, ओनली सिंप्लीफिकेशन, टेक एवरीथिंग ऑन वन साइड, ओके, एंड यू कैन फिनिश. Just one step remain to answer. Now, all of you can see now sum number 13. Okay, sum number 13 also we will do, and the 14 and 15 I am keeping it for you dear students. आप try करना, ठीक है, और देखना कि क्या होता है. अगर doubts है तो now we are meeting in person also in school, so you can ask me इफ़ यू हैव एनी डाउट. ठीक है, सो अब 13 सम को ध्यान से पढ़ो. ये थोड़ा सा, वैसे तो सब IMP है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा है टिपिकल कि वो पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है. सो इट इज़ लाइक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स A and B on the coordinate axis. ओके, ठीक है. सर्कल जो है वो कैसा है, ओरिजिन में से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 0 0, मेकिंग एन इंटरसेप्ट्स. इंटरसेप्ट्स मीन्स x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो इसका डायग्राम ड्रॉ करके समझना पड़ेगा एक्चुअली दोस्तों. तो मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा. ठीक है, अब मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ प्रॉपर सर्कल. सो फर्स्ट आई ड्रॉ द सर्कल, उल्टा काम करता हूँ, देन आई ड्रॉ द एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस, एंड सी व्हाट टाइप ऑफ सर्कल इट इज, पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, मतलब मुझे यहाँ पर ओरिजिन शो करना पड़ेगा, यूँ ऐसे. ठीक है, राइट. सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और व्हाट एल्स गिवन टू अस, ये ओरिजिन हो गया हमारा,
0 0. This is x intercept given small a, this is y intercept given small b. Now you know, if I say this is the point A, then the coordinates will be A0. If I say this is the point B, then the coordinates will be 0B. बराबर कि नहीं? अब आप थोड़ा ध्यान से वॉच करना दोस्तों. अगर 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज अप्लाई करो, अगर मैं ए बी को ज्वाइन करता हूँ, ये ए बी सपोज मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इजंट इट? बिकॉज एक्सिस आर देयर, सो ऑब्वियसली 90 डिग्री तो होगा ही होगा, इजंट इट? ओके. नाउ व्हाट थियरम ऑफ स्टैंडर्ड 10 इज एप्लीकेबल ओवर हियर दोस्तों. मैं ये पूरी डायग्राम उल्टी कर देता हूँ, यू रिवर्स. और अब थोड़ा इसको देखो, हमारा रफ डायग्राम है. इट्स ए, इफ यू सी नो, देन यहाँ पर 90 डिग्री बना है, इसका मतलब कि दिस इज अ सेमी सर्कल. ए ओ बी इज अ सेमी सर्कल. Because in 10th standard there was a theorem, there is a theorem that the angle inscribed in a semicircle is a right angle. याद आ रहा है? Angle inscribed in a semicircle is a right angle. ठीक है, राइट? तो यहाँ पर ऑलरेडी राइट एंगल है, therefore it's a semicircle. And if it is a semicircle, obviously AB is a diameter. हो गया ना? If AB is a diameter, then obviously you can find out its midpoint as a center of the circle. सेंटर भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा विथ अ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो देखो सब कुछ हो गया, isn't it? ओके. तो क्या करेंगे हम? सपोज दैट द पॉइंट इज P, राइट? अब मैं पूरा यू एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट हियर यू जस्ट सी दैट हियर AB, line segment AB is the diameter, ठीक है, of a circle, right? Because reason is क्या, मेजर एंगल AOB जो है ना वो 90 डिग्री है ना, इसलिए, isn't it? So अगर डायमीटर है तो फिर उसका मिड पॉइंट ले लूँ तो वो सेंटर हो जाएगा, है ना? तो सेंटर ऑफ अ सर्कल इज P. वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ AB, है कि नहीं? सो देयरफॉर व्हाट इज P? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, A + 0/2, 0 + B/2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी A/2, B/2. तो ये हमको सेंटर मिल गया. अब क्या बचा ढूंढना हमको? रेडियस. ठीक है, राइट? सेंटर हो गया, अभी रेडियस. नाउ जस्ट सी कि ये हमारा सेंटर हो गया A/2, B/2. तो AP और PB is a radius, no? Either AP or PB, both the way you will get the same answer. So radius R मैं ले रहा हूँ AP, आप कोई भी ले सकते हो. तो AP सपोज मैंने ले लिया, तो इट विल बी व्हाट? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला A minus A/2 the whole square plus 0 minus B/2 the whole square. सो ये हो गया A/2 स्क्वायर, मतलब A²/4 प्लस B²/4 हो गया. तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 4 बाहर निकाल देते हैं तो A² + B²/2 हो जाएगा. 4 LCM will become 2 outside the root. Hope you understand this thing. सो ये हो गया हमारा रेडियस. ठीक है, बस फिर तो क्या, अब सेंटर भी हो गया, रेडियस भी हो गया, तो यू कैन फाइंड आउट द सर्कल. सो यू कैन हैव रिक्वायर्ड सर्कल इज, अभी सिंप्लीफाई मैं नहीं करूँगा, वो आप कर लोगे, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? A² + B²/4. ठीक है, तो अभी होमवर्क में आप ये सम जो है वो फिनिश कर दोगे. ओके, फिनिश इन होमवर्क. And not only this, also
do which number of सम नंबर 14 15 भी ट्राई करना है, 14 एंड 15, ठीक है, राइट। और एनी डाउट इज देयर? नो प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो, ठीक है ना दोस्तों। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज पैराबोला। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।